Hello students, welcome to Gyanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about conservation of wildlife and conservation of natural vegetation. I hope you understood very well about all these topics, and today we will start our history portion, and in the history portion we will study about the arrival of British in our India. So today we will see the unit introduction of the history part. So let's get start the topic. Okay, so let's start our history portion. So in this unit we will discuss about arrival of British in India. So first of all we will get unit introduction. सो रिकेप ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री. हम क्या करेंगे, रिकेप देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट अब तक हो चुकी थी. सो ब्रिटिश के पहले की बात करें तो ये 7 इवेंट हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती है. सो हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे ओकर्ड. जो इवेंट सबसे पहले हुई है उसको हम पहले अरेंज करेंगे, और जो इवेंट करंट में हुई है मीन्स जो इवेंट लास्ट में हुई है हम उसको लास्ट में अरेंज करेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास 7 डिफरेंट इवेंट देखने को मिलती है, और ये सभी इवेंट हिस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है. सो हमें क्या करना है, उसका अरेंजमेंट करना है. So let's see the answer. So first of all, फर्स्ट इवेंट इज स्टोन एज. स्टोन एज हिस्ट्री की फर्स्ट इवेंट मानी जाती है. यहाँ पर क्या हुआ था, जो एंशियंट टाइम के पीपल थे उसने स्टोन का यूज़ डिफरेंट वेपन बनाने के लिए, देन उसकी जो डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है उसको कंप्लीट करने के लिए स्टोन का यूज़ स्टार्ट कर लिया था. सो फर्स्ट इवेंट इज स्टोन एज. देन second event is Harappan civilization. Very important. Harappan civilization is also known as Indus Valley civilization, and the time of Harappan civilization was near about 3200 year BC. Then third event, very important event, is Vedic age, and the time of Vedic age was uh, 1500 BC. Then fourth event, very important event, is beginning of Mauryan rule, and the time of beginning of Mauryan rule was 600 BC. Then fifth event is rule of Guptas, and the time of rule of Guptas was 600 AD. Then establishment of Delhi Sultanate, and time of the Delhi Sultanate was 1300 AD. Then last event, beginning of Mughal rule. So the time of beginning of the Mughal rule is about was about 1500 AD. So you must remember this sequence कि सबसे पहले स्टोन एज हुई थी, देन हरप्पन सिविलाइजेशन हुई थी, देन वैदिक एज, देन बिगनिंग ऑफ मौर्यन रूल, देन रूल ऑफ गुप्ताज, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बिगनिंग ऑफ मुगल रूल. ये सभी इवेंट ब्रिटिश रूल के पहले की है. मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश रूल के बारे में. सो ये सभी इवेंट ब्रिटिश रूल के आगे की टाइम की हमें देखने को मिलती है. देन व्हाट टाइम पीरियड विल बी स्टडी दिस ईयर. सो हम इस साल मीन्स स्टैंडर्ड 8 में कौन से टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी द डिफरेंट इमेजेस ऑफ द टाइम पीरियड, एंड ऑल द इमेजेस indicates indicate different time period. So first of all, in this image we can see different stones, and these different stones indicate stone age. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टोन एज सबसे ओल्ड हिस्ट्री है, मीन्स हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कहेंगे स्टोन एज. देन सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं द पिक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो
हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज 3200 BC। देन बात करें वैदिक एज, सो दिस पिक्चर indicates Vedic age and the time period of Vedic age in between 1000 BC to 1500 BC. Then this point indicates Mauryan age, means Mauryan rule, and the time of the Mauryan rule was 600 BC. Then in this picture we can see one statue, so this picture indicates Gupta Yug, so the time period of Gupta Yug is between 400 to 600 BC. Then next picture is about Qutub Minar. In this picture we can see Qutub Minar. Qutub Minar was built by Qutbuddin Aibak, and Qutbuddin Aibak was one of the most important ruler of Delhi Sultanate. Then in this picture we can see Taj Mahal, and Taj Mahal was built by Shah Jahan, and Shah Jahan was one of the most important ruler of Mughal Empire. Then in the last we can see the picture of European people. So in this standard, in this year, we will study the time period of British rule. So this is about our brief introduction of the history. सो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने हिस्ट्री की ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखी। हम इस चैप्टर में, इस ईयर में हम बात करने वाले हैं यूरोपियंस के बारे में, कि जो यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए थे, स्पेशली ब्रिटिश के बारे में हम इस लेसन में, हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर हमें एक टाइमलाइन देखने को मिल रही है, और टाइमलाइन में डिफरेंट टाइम पीरियड को इंडिकेट करते हुए हमने देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लेफ्ट साइड पे जो टाइम पीरियड है वह काफ़ी पहले हो गए, मीन्स ये काफ़ी ओल्ड हिस्ट्री है। धीरे धीरे हम राइट साइड की ओर आगे बढ़ेंगे और हमें करंट की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। मीन्स जो सबसे लेफ्ट साइड पे हमें देखने को मिल रहा है स्टोन एज के बारे में। देन धीरे धीरे आगे हम बढ़े तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन वैदिक युग आता है, देन मौर्यन युग, देन गुप्तास युग, देन दिल्ली सल्तनत, देन मुगल एम्पायर, एंड इन द लास्ट हमने देखा ब्रिटिश रूल के बारे में। सो दिस इज द टाइम लाइन ऑफ द हिस्ट्री। देन हम काफ़ी ऐसा बोलते हैं कि BC AD, सो ये क्या है? BC AD एक इंडिकेशन है जिससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है। सो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ीरो से। जब भी कैलेंडर बना होगा, टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा? ज़ीरो से। देन क्या टाइम आएगा? 1 2 3, और आज करंट ईयर की बात करें तो 2020। सो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और अभी हमें 2020 देखने को मिल रहा है। बट हमारी हिस्ट्री काफ़ी ओल्ड है, हमें ज़ीरो से आगे भी जाना पड़ेगा, ज़ीरो से पीछे भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें कई सारी हिस्ट्री देखने को मिल रही है। हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो ज़ीरो से हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? 3000 ईयर पीछे जाना पड़ेगा। देन वैदिक युग की बात करें तो उसका टाइम है 1500 BC। BC मीन्स पीछे जाना होगा, ज़ीरो से भी पीछे का टाइम होगा इसका। सो BC की बात करें तो अगर हम ज़ीरो से पीछे जाएंगे, कैलेंडर में अगर हम ज़ीरो से पीछे जाते हैं तो हम उसको BC से इंडिकेट करेंगे। एंड अगर हमें ज़ीरो से आगे के टाइम को कोई इंडिकेशन देना है, मीन्स अभी 2020 चल रहा है, बट इस दोनों के टाइम के बीच में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी। लाइक दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1300, देन मुगल एम्पायर की बात करें 1500, 1500। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें AD से इंडिकेशन करना है। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनी। सो आपको ये याद रखना है, जहाँ पर भी आप BC ऐसा कोई इंडिकेशन देखो या फिर AD ऐसा कोई इंडिकेशन देखो,
तो आपको ये सिंपल सा याद रखना है, BC मीन्स जीरो से भी पीछे जाना होगा और AD मीन्स जीरो से जो आगे का टाइम चल रहा है उसको हम AD से इंडिकेट करेंगे। Then in this unit we are going to study the time period from around 1600 CE up to 1900 CE। इस यूनिट में हम कौन से टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करने वाले हैं बिटवीन 1600 टू 1900। यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर CE से इंडिकेट किया है। मैंने आपको बताया BC एंड AD के बारे में। BC अगर हम ज़ीरो से पीछे जाते हैं तब हम BC का यूज़ करेंगे, और AD की बात करें ज़ीरो से आगे वाला टाइम। और ये भी दो कॉन्सेप्ट है, BCE एंड CE। BCE मीन्स ज़ीरो से पीछे, CE मीन्स ज़ीरो से आगे। जैसे हमने BC देखा था इन द हमने आगे बात की थी तो ज़ीरो से पीछे, इसी तरीके से BCE इसको भी हम ज़ीरो से पीछे वाले टाइम के लिए इंडिकेट करेंगे। देन हमने देखा AD ज़ीरो से आगे वाला टाइम जिसको हम कहेंगे AD, और अगेन CE का मीनिंग भी यही होता है, ज़ीरो से आगे वाला टाइम। यहाँ पर क्या लिखा है 1600 CE। CE मीन्स AD, दोनों सेम है, CE और AD दोनों सेम है। Let's move further. Here we have one question. Which of the following would give a broad picture of history? Why? यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक दो पॉइंट दिए गए हैं। ये दो पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हमें हिस्ट्री की ब्रॉड पिक्चर प्रोवाइड करेगा? ब्रॉड पिक्चर मीन्स होलिस्टिक अप्रोच, इस दोनों में से कौन सा है? First point is history as an account of battles and dates associated with rulers. Second point, history as an account of the lives of people, their livelihoods, cultures and changes in the society. दो पॉइंट के बारे में हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हिस्ट्री में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है बैटल्स एंड डेट्स एसोसिएटेड विथ रूलर्स। क्या ये हमें ब्रॉड पिक्चर ऑफ द हिस्ट्री प्रोवाइड करता है? हिस्ट्री का ब्रॉड पिक्चर हमें ये पॉइंट में से देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बैटल्स एंड डेट से हमें क्या पता चलेगा कि पास्ट में ऐसी बैटल्स हुई थी और इसकी डेट ये थी, मीन्स ये साल में ये बैटल लड़ी गई थी। बट सेकेंड पॉइंट हमें ब्रॉड पिक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि in the second point we can see history as an account of the lives of people, their livelihoods, cultures and changes in the society। हिस्ट्री का सेकंड पॉइंट ये है कि हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि पास्ट में पीपल ने कैसे अपनी लाइफ स्पेंड की, उसका लाइवलीहुड्स कैसा था, उसका कल्चर कैसा था, और आज की बात करें तो पास्ट टाइम और करंट टाइम में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन द सोसाइटी। ये सभी पॉइंट के बारे में हमें हिस्ट्री में पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट वुड गिव अ ब्रॉड पिक्चर ऑफ हिस्ट्री because it gives us information about the lives of different people and changes in the society rather than only talking about kings and the battles they fought। हमने देखा कि सेकेंड पॉइंट से हमें क्या पता चलेगा कि पास्ट में पीपल कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे और आज की कंपैरिजन करें तो हम हमारी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं। देन क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, मीन्स पास्ट में हम देखें तो टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमी थी, बट आज हम देखें तो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हुई है। तो ये सभी हमें हिस्ट्री से पता चलेगा रादर देन ओनली टॉकिंग अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट। मीन्स पहले पॉइंट में हमने देखा कि बैटल्स एंड डेट से हमें कोई पता नहीं चलेगा, सिर्फ हमें यही पता चलेगा कि ये दोनों किंग थे, ये दोनों एम्पायर थे जिसके बीच में वॉर हुई थी और ये वॉर ये साल में लड़ी गई थी। फर्स्ट पॉइंट हमें कोई ब्रॉड पिक्चर नहीं प्रोवाइड करता, बट सेकेंड पॉइंट है ये हमें हिस्ट्री की ब्रॉड पिक्चर प्रोवाइड करता है। Then let's move further. Here we have two timeline. First of all we will see one timeline. Timeline one is about Suman. It drawn by Suman.
Here we have 5 different time period. So first is in a 2000 I was born. सुमन ये कहता है कि मैंने 2000 में, 2005 में, 2012, 2050 एंड 2019 में क्या क्या एक्टिविटी की. So in 2000 I was born. Then 2005 I was admitted in a school. Then in a 2012 I went to Delhi on family trip. Then 2015 I stood first in my class. And 2019 my father gifted me a bicycle. So सुमन क्या कहता है कि 2000 में मेरा जन्म हुआ था, 2005 में मैं स्कूल में एडमिट हुआ, देन 2012 में मैं दिल्ली गया फॉर फैमिली ट्रिप, देन 2015 में क्लास में मैं फर्स्ट रैंक पे पास हुआ, एंड 2019 में मेरे पापा ने मुझे बाइसिकल गिफ्ट की. सो दिस इज टाइमलाइन 1. Then here we have timeline 2, it drawn by Karthik. So Karthik ये कहता है कि in 2000 I was born in village called Rampur. Most of the people in my village were dependent on agriculture. Then in 2005 our village was affected a severe drought and many people moved to other places in search of work, but our family didn't move. Then in 2012, new roads were laid in our village and a hospital was built. Then in 2015, as the population of my village grew, it transformed into a small town. And in 2019, by the time I completed my schooling, there were many new colleges established in my town. I joined one of them. So यहाँ पर टाइमलाइन 2 कार्तिक के बारे में, कार्तिक अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, अपने विलेज के बारे में बता रहा है. सो 2000 की बात करें तो उसका जन्म रामपुर विलेज में हुआ था. देन रामपुर विलेज ऐसा विलेज था जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था. देन 2005 की बात करें तो एक सीवियर ड्रॉट से अपना विलेज है वो अफेक्टेड हुआ. मीन्स ड्रॉट मीन्स दुष्काल आया, रेन काफ़ी कम पड़ा. सो मैनी पीपल मूव टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ वर्क. काफ़ी सारे पीपल दूसरी जगह पर चले गए फॉर सर्चिंग द न्यू वर्क, बट आवर फैमिली डिडेंट मूव. बट उसकी फैमिली थी, उसने अपने विलेज में ही रहने का डिसाइड किया. देन 2012 की बात करें तो उसके विलेज में न्यू रोड्स बनाए गए और हॉस्पिटल का भी बिल्डअप हुआ. देन 2015 की बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसका विलेज है वो एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया. एंड 2019 की बात करें तो उसने अपनी स्कूल टाइम कंप्लीट की और कॉलेज में ज्वाइन हो गया. और उसके विलेज में मीन्स उसके टाउन में अभी काफ़ी सारी कॉलेज थी तो उसमें से उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया. सो दिस इज द टाइमलाइन 2 एंड इट ड्रॉन बाय कार्थिक. So here we have some question from the timeline. So first question is, how are the two timelines different? मीन्स दो टाइमलाइन में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है. सो Suman's timeline tells us about the events in his life and his achievements, whereas Karthik's timeline tells us about the important event in his life and the changes in his village. सो दोनों के बीच में हमें यही डिफरेंस देखने को मिलता है कि सुमन की टाइमलाइन हमें ये बताती है कि उसकी कैसी लाइफ थी, उसने कौन कौन सी इवेंट अचीव की. ये सभी हमें सुमन की टाइमलाइन से देखने को मिलता है. बट कार्तिक की टाइमलाइन हमें ये बताती है कि उसकी लाइफ में उसने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट स्पेंड की और उसके विलेज में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले. Then, second question, which timeline gives us a better picture of the changes that took place in that time period? Explain. So, दोनों टाइमलाइन में से कौन सी टाइमलाइन हमें एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती है चेंजेस की. मीन्स दोनों टाइमलाइन, एक टाइमलाइन थी सुमन की जो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था कि 2000 में उसका जन्म हुआ. देन 2005 में उसने स्कूलिंग स्टार्ट की
उसको अच्छी रैंक से वह स्कूल में पास हुआ, उसके पापा ने उसको गिफ्ट दिया। मीन्स पर्सनल पर्सपेक्ट हमें देखने को मिलता है सुमन का इन द टाइमलाइन वन। बट कार्तिक की टाइमलाइन में हमें क्या देखने को मिलता है कि उसने सभी बात का डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसका जन्म हुआ था रामपुर में, देन रामपुर विलेज में क्या क्या एक्टिविटी हुई, उसने कहाँ पर स्कूलिंग स्टार्ट किया। सो एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करती है कार्तिक की जो टाइमलाइन है वह, because Karthik's timeline gives us a better picture of the changes that took place in that time period, as it gives us detail about the changes in his village. So हमने देखा कि कार्तिक ने क्या बताया कि विलेज में क्या क्या चेंजेस आए। देन उसने अपनी लाइफ के बारे में भी बताया कि उसने स्कूलिंग स्टार्ट की, स्कूलिंग कंप्लीट हुई, देन कॉलेज में ज्वाइन हुआ, उसका बर्थ कहाँ पर हुआ। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन। और सेकंड, उसके विलेज में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में भी उसने बताया। सो कार्तिक्स टाइमलाइन गिव्स अस बेटर पिक्चर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस एंड दैट टाइम पीरियड। Then we will move further. So next topic is importance of deeds. Deeds का क्या importance है in the history? So the importance of the date is associated with the importance of an event. कोई डेट है उसका इम्पोर्टेंस तभी होगा जब उस डेट पे कोई एक इवेंट इम्पोर्टेंट होगी। मीन्स 15 अगस्त 1947, ये डेट ऐसी है, ये डेट हर इंडियन को पता होगी क्योंकि यहाँ पर हमें मिला था, ये डेट पे हमें मिला था इंडिपेंडेंस। सो 15 अगस्त 1947 ये डेट के साथ एक इम्पोर्टेंट इवेंट जुड़ी है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, सभी पीपल को ये डेट रिमेंबर है। सो यही है इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट्स। So, for Suman, the events associated with his own life and his achievements were important. So, हमने देखा कि सुमन ने क्या किया था, अपनी जो डिफरेंट इवेंट्स थी उसको डिस्क्राइब किया था। मीन्स उसने अपनी लाइफ में कौन कौन सी इवेंट स्पेंड की, कौन कौन सी अचीवमेंट प्राप्त की, उसने ये सभी हमें बताया था। Then for Karthik, the events associated with his village were equally important. And कार्तिक के लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि उसके विलेज में क्या क्या चेंजेस आए, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट थी। सो हैंस द डेट्स ऑन देयर टाइमलाइंस वर डिफरेंट। हमने देखा कि सुमन एंड कार्तिक दोनों की टाइमलाइन की जो डेट थी उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा था। सो दोनों के लिए डेट का इम्पोर्टेंट, इवेंट का इम्पोर्टेंट डिफरेंट है। बट ये दोनों के साथ कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई ईयर associated होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डेट इज एसोसिएटेड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ अन इवेंट। हमने देखा 15 अगस्त 1947 ये डेट का इम्पोर्टेंस ये है कि ये डेट पे हमें इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। Then let's move to our next question. So, why do we need a different set of ideas instead of those given by the British historians? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताया था, बट ये डेट की हमारे इंडियन को ज़रूरत नहीं है क्योंकि the British historians give importance only to the dates associated with the life of their Governor General and their activities. ब्रिटिश हिस्टोरियन हमें डेट्स का ये इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जो अपने जो गवर्नर जनरल थे उसकी लाइफ के साथ जो भी डेट एसोसिएटेड है उसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। बट हमारे इंडियन के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, हमारे इंडियन के लिए लाइव्स ऑफ द इंडियंस एंड मेजर चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट थी। सो एज वी ट्राई टू स्टडी द लाइव्स ऑफ द इंडियंस एंड मेजर चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी, the important dates would differ from the dates written by the British historians. So यहाँ पर हमें दो पर्सपेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट पर्सपेक्ट की ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो डेट लिखी है ये डेट उसके गवर्नर जनरल के साथ एसोसिएटेड है। बट
एज अ इंडियंस हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हमारे इंडियन सोसाइटी में आए थे, या फिर जो भी हमारे इंडियन पीपल की जो लाइफ्स थी उसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट डेट एसोसिएटेड थी, हम उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसीलिए हम ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो भी डेट दी है उससे हमारा डिफरेंट सेट ऑफ डेट्स देखने को मिलता है। Then let's move to next question. So, which dates were considered important by the British? ब्रिटिश ने कौन कौन सी डेट थी उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया था। द डेट्स एसोसिएटेड विथ गवर्नर जनरल्स रूल एंड देयर अचीवमेंट्स वर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय द ब्रिटिश। हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल थे उसका रूल और उसकी अचीवमेंट थे उसको ब्रिटिश हिस्टोरियन ने एक इम्पोर्टेंट डेट के रूप में देखा था। देन which dates can be considered important while studying Indian history? जब हम इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तब हम कौन कौन सी इवेंट को इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं। while studying Indian history we can consider those dates important that mark major events such as changes in Indian society or changes in the lives of people. As Indians हम बात करें तो हम हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो भी हमारे लाइफ में चेंजेस आया है, हमारी सोसाइटी में चेंजेस आया है, और जो भी इवेंट ये इवेंट से जुड़ी हुई है उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। In this lecture, we have seen unit introduction. In this lecture, we have discussed about the importance time period of Indian history. Then we have also discussed about the Suman's timeline and Karthik's timeline. Then we have also discussed about the importance date as perspective of इंडियंस एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियन। हमने ये सभी के बारे में देखा। देन हमने बीसी के बारे में देखा, एडी के बारे में देखा, सी बीसी ये कॉन्सेप्ट क्या है इन द हिस्ट्री, ये सभी के बारे में डीपली डिस्कस किया। आई होप you understood very well about all the topics, all the points, and if you have any doubt regarding these topics you can ask me anytime. This is about our unit introduction. Now this is end of the video. Thank you for watching. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.